میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم اس پر بات کریں صدر پاکستان نیا پنڈورا باکس کھل گیا ملک کے اندر، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جو آرمی ایکٹ بل تھا اور پارلیمنٹ سے ترمیمی بل ان کے پاس موصول ہوئے تھے انہوں نے سائن نہیں کیے تھے، ان کی اجازت کے بغیر ان پر سائن کر کے وہ بل اپروو کرا لیے گئے۔ اب بڑی کنٹروورسی اس ساری بات میں پیدا ہو چکی ہے کہ صدر پاکستان خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر اور مجھ سے پوچھے بغیر کسی نے خود سے سگنیچرز کر کے وہ بل واپس بھیج دیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری جو ان کے سیکرٹری ہیں ان کو بھی ریموو کر دیا ہے۔ ایکچولی ان کو واپس کہا ہے کہ وہ رپورٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو۔ وقار احمد صاحب ان کے سیکرٹری ہیں، ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی گئی ہیں، اور نیا سیکرٹری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید سیکرٹری کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ ایوان صدر سے یہ انفارمیشن آئی ہے۔ بڑی چیزیں اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں اور بڑی جو ہے وہ دیکھنے میں ایسے آ رہا ہے کہ جیسے نارمل سچویشنز نہیں ہیں۔ صدر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ آیا سامنے، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 بار کنفرم کیا، ری چیک کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بل ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیے ہیں، یعنی میں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، میں نے بلز کو اپروو نہیں کیا تھا، اور میں نے 3 بار کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی بالکل واپس بھجوا دیے گئے ہیں، یہی انفارمیشن آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ یہ بل جو ہے میں نے اپروو کر دیا، جب ہر طرف جو ہے سرکولیٹ کی نیوز، اور نیوز سرکولیٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں نے تو بل پاس کیا ہی نہیں، میں نے سائن ہی نہیں کیے، میڈیا پہ کیوں یہ نیوز آ رہی ہے کہ میں نے سائن کر دیے ہیں اور یہ اپروو کر دیے۔ بہرحال اس کے بعد آج صدر پاکستان نے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد جو ساری گفتگو اب کیا ہوگا اس کے اوپر مزید، یعنی سیکرٹری کو اگر انہوں نے کہا ہے اس کی خدمات واپس کر دی ہیں، اس پہ کیا ہوگا؟ کیا صدر پاکستان کو ثبوت دینے پڑیں گے؟ صدر پاکستان کو اب ثابت کرنا پڑے گا یہ تمام باتیں جو صدر پاکستان کر رہے ہیں؟ کیا صدر پاکستان کی یہی لیگیسی رہ گئی ہے یہاں پہ کہ ان کو بھی اب تمام باتوں کا ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے ہیں، اب کیا مزید سوال و جواب اور کیا مزید ثبوت دینے پڑیں گے انہیں، یا کس طرح سے ہوگا؟ اور کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کا عملہ بغیر ان کی اجازت سے خود سے ہی ایک فیک سائن کر دے؟ اس کو فیک سائن ہی کہیں گے جب کوئی شخص خود سائن نہیں کرتا اور اس کے سائن کہیں پہ ہو جائیں، وہ کلیم کرے کہ دیز آر ناٹ مائی سگنیچرز، تو پھر فورینزک ہونا اور ان سب چیزوں کو چیک کرنا، کیا صدر پاکستان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا؟ اس سب پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خضر حیات گوندل صاحب، سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور ساتھ تشریف فرما ہے ماہر قانون ہیں حافظ اسرار الحق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا خضر حیات گوندل صاحب سے۔ خضر بھائی، جس طرح سے آپ نے سارا معاملہ دیکھا، آپ نے سارے سچویشن کو بھی پورا اسیس کیا، اور ظاہر آپ سینئر اینالسٹ ہیں، آپ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہے سر؟ صدر پاکستان نے اچانک 27 گھنٹوں کے بعد کہتے ہیں میں نے میڈیا سے دیکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تو بل پہ سائن کیے ہی نہیں تھے، کس طرح سے بل پاس ہو گیا، کیسے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں؟ پھر آرمی ایکٹ کی بات تھی اور اس پہ سارا کچھ چل بھی رہا تھا، بڑا افیکٹولی کام بھی کیا جا رہا ہے، تو کیا صدر پاکستان روکنا چاہتے تھے اور روک نہ پائے؟ ہوا کیا یہاں پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس بڑے حساس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو وہ ہمیں بیک گراؤنڈ کے بغیر آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی بعض اوقات اپنی مرضی کا ترجمہ جو ہے یا تبصرہ یا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ اس کیس میں جو پہلے میں یہ بتا دوں کہ روٹین کیا ہوتی ہے۔ روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس ہو کے جاتا ہے تو پھر وہ سینٹ کے پاس جاتا ہے، سینٹ سے پاس ہوتا ہے تو پھر وہ صدر مملکت کے پاس جانا ہوتا ہے فائنل اپروول۔ اب صدر صاحب نے اس کو دیکھنے کے بعد ان کی ٹیم میں لا کے لوگ بیٹھے ہیں، اور جو لا کے شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ایک سابق چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ وہ کانٹریکٹ پر وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ لا کے لوگ وہاں پر ہوتے ہی زیادہ کانٹریکٹ پر، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد وہ صدر مملکت کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے خیال میں یہ خرابیاں ہیں یا نہیں ہیں، صدر مملکت کی مرضی ہے ان کے ساتھ ایگری کرے نہ کرے، وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد صدر مملکت کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں کہ وہ اس پوری رائے کو لینے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد اگر کسی اور سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وہ آپشن بھی موجود ہوتی ہے کہ ماہرین سے بھی، وہ باہر سے بھی خدمات لے سکتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کا معاملہ آیا ہے، میری ٹیم یہ کہہ رہی ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں،
تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ماہرین سے بھی وہ رائے لے سکتے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں, یا تو انہوں نے اس کے اوپر اپروو کر کے بھیجنا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ اپروو کریں گے تو وہ ایکٹ بن جائے گا اور پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس کو اپروو نہیں کرتے, ریمارکس دے کے واپس بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ کو کہ جی اس میں یہ خامیاں ہیں, یہ آبزرویشنز ہیں, ان کو دور کر کے بھیجا جائے. اب اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ واپس تو گیا کوئی نہیں بل, اور صدر صاحب نے اس کو اپروو بھی کوئی نہیں کیا, آگے بھی نہیں گیا. صدر صاحب اپنی کنسلٹیشن کے لیے 10 دن تک روک سکتے ہیں اس کو, کہ 10 دن تک یا تو وہ آئیدر وے ڈیسائیڈ کریں گے اس کو, اگر نہیں ڈیسائیڈ کرتے تو 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ ڈیسائیڈ ہو جائے. اگر نو آبزرویشن ہے تو پھر وہ 10 دن کے بعد جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پابند ہے کہ وہ اس کو نوٹیفائی کروائے کہ جی یہ ایکٹ بن گیا ہے, اور اگر کوئی آبزرویشن آئی ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجے. اب اس کیس میں یہ ہوا کہ صدر صاحب نے جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس میں کوئی ریمارکس دیے ہی نہیں. جب ریمارکس نہیں دیے اور واپس نہیں بھیجا تو پھر وہ پریزیڈنسی میں ہی پڑا رہا. ٹھیک ہے بل. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے سٹاف کو چاہیے تھا کہ اب کوئی ابہام تھا, جب 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, صدر صاحب نے اگر اس پر واپس نہیں کیے تو ان کو بتاتے کہ سر یہ اگر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو 10 دن کے بعد یہ قانون بن جائے. صدر صاحب کا یہ موقف بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار اس چیز کو کراس چیک کیا تھا کہ کیا آپ نے وہ بل واپس بھیج دیا ہے. اٹ مینس اگر وہ واپس بھجوا رہے تھے, وہ ریجیکٹ کر کے ہی واپس بھیجنا چاہ رہے تھے, تو پھر کچھ نہ کچھ ریمارکس یا کوئی چیز تو انہوں نے اوپر دی ہوگی. صدر صاحب کا مطلب ٹینیور آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, اتنے سالوں سے آخر وہ یہی کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ ریمارکس دینا بھول گئے یا انہوں نے جان بوجھ کے نہیں سر, ریمارکس دینا نہیں بھولے, بالکل میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ ریمارکس دینا بھولے وہ. ٹھیک ہے. اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے کوئی بات ہے. ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا غالباً آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میں ریمارکس نہیں بھی دوں گا اس پر, تو بھی اگر پریزیڈنسی میں یہ پڑا رہے گا تو میری ذمہ داری میں رہے گا یہ, اور 10 دن کے بعد اس کو کسی نہ کسی صورت میں یا تو واپس جانا ہے, اگر یہاں پڑا رہے گا تو 10 دن کے بعد یہ ایکٹ بن جائے گا, اور اگر میں اس کو اپروو کر لوں گا تب بھی وہ اس کو سمجھنے میں میرے خیال میں, ویسے بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ, بڑے زیرک ہیں اور ان کی بڑی دور تک ہے چیزیں, یہی کام کر رہے ہیں. اور میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی بڑی اس بارے میں ہے, لیکن یہ پہلا بل اس طرح کا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا سر. لیکن جبکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہت سے بل ریجیکٹ کر کے بھی بھیجے ہیں اور صدر صاحب نے اپروو نہیں کیے تھے, ریجیکٹ کر کے بھیجے ہیں. سوال یہ پیدا ہو کہ صدر صاحب نے اگر اس کو ریجیکٹ کرنا تھا جی تو باقی کے بل جو ہیں وہ جو ریجیکٹ کیے وہ واپس پارلیمنٹ کو چلے گئے, یہ کیوں نہیں گیا؟ اگر اس پر ریمارکس ہیں تو وہ آن ریکارڈ ہوں گے, آپ کے میرے یا کسی کے چھپانے سے وہ چھپنے نہیں ہیں. بالکل. وہ اگر جوڈیشری میں جاتا ہے معاملہ, جب جا رہا ہے وہ جی, تو وہاں پر وہ ریکارڈ سامنے آ جانا ہے کہ صدر صاحب نے اس پر کوئی ریمارکس دیے یا نہیں دیے. اچھا, اس میں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ عام طور پر صدر یا جو اس صورت میں ہوتا ہے پرائم منسٹر یا گورنر جو ہے نا, وہ سم ٹائمز خود سائن نہیں کرتے, صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں, اور پرنسپل سیکرٹری جو ہوتے ہیں, پرنسپل سیکرٹری آن دیئر بیہاف جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہیز سین اینڈ اپرووڈ. اوکے ٹھیک ہے, چیف منسٹر ہیز سین اینڈ اپرووڈ. صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے سائن کیے ہی نہیں اور میرے سائن کر دیے گئے ہیں وہاں پہ, ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن, یہ صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے سائن نہیں کیے, میں نے ڈائریکشن دی تھی, میں نے ڈائریکشن دی تھی, اس پر پرنسپل سیکرٹری نے عمل نہیں کیا, یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, چلو اس بات پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میرے جعلی سائن کر, پرنسپل سیکرٹری ایسی حماقت کر نہیں سکے گا, اسے پتا تو بڑا نہیں کر سکتا, اتنا آف دا مارک تو کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں پہ, اس طرح سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کے سامنے میڈیا کے حوالے سے جو بل تھا وہ وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑا رہ گیا, وزارت قانون نے بھیجا ہی نہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو, وہاں سے سائن ہو کے وہ جاتا پریزیڈنٹ کے پاس ایکٹ بننے کے لیے, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پہلے والے رخصت ہو گئے, دوسرے آئے, ان سے سائن کروا کے پھر وہ بھجوایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں اتنی کمپیٹنسی کے لوگ موجود ہیں, انہیں پتا ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک لیگل ٹیم, ایک بندہ میں کہتا ہوں بے ایمان ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, ساری ٹیم بے ایمان ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا.
میرا ذاتی خیال ہے کہ صدر صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ انوکھا کیس بن گیا اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر نہیں کرتا تو شاید اس کا مطلب نو ہے. صدر صاحب معافی بھی مانگی ہے انہوں نے کس چیز کی معافی مانگی؟ آپ نے میری بات میں معافی مانگی. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں غلطی کر گیا. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا نہیں تو پھر ویسے واقعی معافی کیوں مانگنی چاہیے انہیں؟ غلط ہو گیا ہے نا ان سے, کیا نہیں ہوگا انہوں نے, میں نہیں کہتا کیا انہوں نے, لیکن ہو گیا ہے ان سے غلط. لہٰذا اگر انہوں نے غلط بھی نہیں کیا اور غلط ہوا بھی نہیں ٹھیک تو پھر انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی. وہ علامت ہے. اس بات کا جواب تو صدر صاحب دے سکتے ہیں کہ معافی کیوں مانگی انہوں نے اور کس بات پہ معافی مانگی. حافظ اسرار الحق صاحب, تھوڑا سا لیگل اوپینین میں چاہوں گا آپ کا یہاں پہ کہ صدر پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے ہیں اور سائن خود سے ہی ہو گئے. اب سائن بھی میرا خیال ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری کے نہیں ہیں, ان کے اپنے سگنیچرز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ میرے سگنیچرز نہیں ہیں, ان کو ڈینائی کر رہے ہیں اس چیز کو. کیا ہوگا سر؟ اور آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا صدر پاکستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اس معاملے پہ یا نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب بہت شکریہ. آج کا یہ جو موضوع ہے بڑا کنٹروورشل ہے اس اعتبار سے کہ کیا پریزیڈنٹ صاحب کی اسینٹ کے بغیر کوئی بل جو ہے وہ ایکٹ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا. اگر ہم آرٹیکل 75 کی بات کریں تو یہ وہ گتھی ہے جس کو سلجھانے کے لیے سپریم کورٹ کی آبزرویشن ابھی ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ میٹر ہے جو کہ ان پریسیڈنٹل ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم بات کرتے ہیں اب قانون کی کہ آرٹیکل 75 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کا سب آرٹیکل 1 اور کلاز 1 جو ہے کلاز اے, وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ کی طرف سے لیجسلیشن چلی جائے گی سینٹ سے پاس ہو جانے کے بعد, جب وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی جائے, اب پریزیڈنٹ کے پاس دو ہی اختیار ہیں. ایک اختیار یہ ہے کہ یا تو وہ اسینٹ دے گا یا پھر اگر کوئی اس کو اعتراض ہے اس اعتراض کے بعد وہ اس کو ریٹرن کرے گا. بلال صاحب میں تصحیح کرتا چلوں, یہاں پہ دو الفاظ کو انٹرمنگل کیا جا رہا ہے اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط العام ہے. وہ یہ کہ ایک ہے ریٹرن کرنا بل کا جو کہ پاس ہو کے آیا تھا پریزیڈنٹ کے پاس, اور ایک ہے ریجیکٹ کرنا. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل 75 کی بات کریں تو وہاں پر جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ ہے ریٹرن کا. پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی بل لائے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے, وہ ریٹرن کرے گا. اب وہ ریٹرن کیسے کرے گا اس کی بابت اپنی ایک آبزرویشن دے گا, ایک اوپینین دے گا, وہ لکھے گا کہ یہ پوائنٹ ہے, اس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو دوبارہ سے کے مطابق صدر صاحب کوئی بھی بل ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. ریجیکٹ نہیں ہوگا, ریجیکٹ نہیں ہوگا, ریٹرن ہوگا کہ یہ اس کے اوپر تحفظات ہیں. اچھا, وہ تحفظات جو ہیں میں یہ بھی ذرا کلیئر کرتا چلوں. پریزیڈنٹ ایک سپروائزری جورسٹکشن کا نام ہے, ایک اتھارٹی کا نام ہے جس کے سب آرڈینیٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو کہ مختلف کیٹیگری سے مختلف لیگل اسپیکٹس کی بات کریں اس حوالے سے ڈیل کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی قانون کے اندر لیجسلیشن ہوگی, جیسے یہ محسن نے ابھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے چیف جسٹس اپنا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ اور عموماً جو ہے سپریم کورٹ کے جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں وہ ایک رکھا ہوتا انہوں نے, وہ اس کے اوپر لیگل اوپینین دیتا ہے, پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہ واپس چلا جاتا ہے بل, وہ ریٹرن ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس کیس میں ہوا کیا ہے؟ اچھا, پریزیڈنٹ صاحب نے اس بل کے اوپر اسینٹ نہیں دی, سگنیچر نہیں کیے. صرف ایک پوائنٹ یہاں پر ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے ضروری ہے, کیا کوئی بل اگر پاس ہو جانے کے بعد پارلیمنٹ کے پاس ہو جانے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلا جائے اور وہ اس کو نہ تو ریٹرن کریں اور نہ ہی اس کو اسینٹ دیں, پھر اس کا لیگل پہلو کیا ہوگا؟ یہ ایک گتھی سلجھانے والی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ماہرین قانون ہیں انہوں نے رجوع بھی کیا ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب کی بات کریں, پی ٹی آئی کی بات کریں, انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس کے اوپر ایک آ جائے گا. اچھا, اب ایک یہاں پر جو بنیادی نقطہ ہے بلال صاحب, وہ یہ ہے کہ اب اس کا پہلو کیا ہے, کیا وہ بل بن گیا کہ نہیں بنا, جب تک سپریم کورٹ کی اس کی بابت کوئی اوپینین نہیں آ سکتی. اس قانون کو بے ریڈنگ دیکھیں, دو طرح کی بات ہے. اگر ہم لوگ بات کریں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کی بات کریں, قانون کی عمل درآمدگی کے اعتبار سے جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بے ریڈنگ سے قانون کو پڑھنے کے بعد بات کلیئر ہو جائے تو پھر اس میں کسی ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے تو پھر یہ ہے
फैसला आ जाने का इंतजार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर दे। अच्छा, एक मैं अर्ज करता चलो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को 3 तरह से उन्होंने डिफाइन कर दिया। एक है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और एक है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। अच्छा, अब ये प्रेसिडेंट साहब के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं कि एडवाइज किया जाए क्या ये एक्ट बना कि नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट की उसकी बाबत फाइंडिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि ठीक है। एक और मैं अर्ज करता चलूं, आज जो मैंने सारा दिन में कानून की बातें भी सुनी, मैंने पढ़ा भी और बड़े सारे मामला के ऊपर डिस्कशन भी हुई, मैं ये समझता हूं कि ये वो मामला है जिसके ऊपर पीटीआई वाले इस तरफ को कहते हैं कि नाक, अपना मोम की नाक वाली बात है, कोई इस तरफ को खींच रहा है, कोई दूसरी तरफ को खींच रहा है। ये लीगल पॉइंट है, इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल में हमें खामोश रहना चाहिए। या तो कानून बिल्कुल क्लियर हो, ये बात कह दे कि जनाब ये लॉ बन गया, इसके ऊपर कानून खामोश है। जब खामोश होगा तो फिर अपना उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की एंटरटेन हो जाती, उस वक्त तक इसके बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कानून है कि नहीं कानून है। सर, लेकिन कानून बन चुका है और उस पर एक्शन भी आई गेस हो रहा है, और मजीद आज भी, क्योंकि अगर ईमान मजारी और अली वजीर का भी देखा जाए तो शायद जिस तरह से हमने देखा कि उनका केस भी इस टाइम पे आर्मी बिल्कुल, आज उनका रिमांड दिया, पहले 1 दिन का रिमांड था, उसके बाद अच्छा बिलाल साहब एक और इसमें मुज़क्कर केस बात यह है कि गुलाम सरवर केस था PLD 1985 जो है, उस केस के अंदर जो है इसको डिफाइन कर दिया। इसके अलावा पुलिस रूल्स की बात करें, हाई कोर्ट रूल्स की बात करें कि रिमांड जो है वो किन केसेस के अंदर दिया जाएगा। प्रिंसिपल लॉ ये है कि 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। अब मसला ये है कि 24 आवर्स के अंदर कौन सी ऐसी इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी। एक के ऊपर इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने जनाबिली अदारों के खिलाफ उभारने की बात की है, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की बात की है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो उनकी एक सिंपल स्टेटमेंट थी, उनकी एक छोटी सी तकरीर थी या वहां पर बैठ के उन्होंने बात। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई बड़ी लाजत की बात नहीं है। अब रिमांड जो है, हमारे जो यहाँ पर कानून की इंटरप्रिटेशन हो रही है वो ये है कि हर पार्टी जो है, हर जज अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रहा है। वो जो प्रेसिडेंट से सेट हैं, हम लोग उससे डेविएट करने के बाद जो अपनी ओपिनियन दे देते हैं। अब इसमें होना ये चाहिए था कि आज जो रिमांड दिया गया, मैं ये समझता हूं, देखें ये अदालतें हैं, हमें तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए और हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ ए केस जब जाए तो उसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर कोई ओपिनियन दे सके। अलबत्ता जरूरी है कि ये अदालतों को देखना चाहिए कि क्या इसमें रिमांड भी दिया जाए। अच्छा, अब ये जो है इसमें उन्होंने कर दी है, इंप्लीमेंटेशन भी हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो कल जो है वो साइफर वाला मैटर उन्होंने उठाया और FIA वालों के हैंड ओवर कर दिया, रिमांड उनका भी दे दिया गया। अब ये है कि सदर साहब तो कहते हैं कि मैंने साइन ही नहीं किए, और अगर हम बात करें उन्होंने कहते हैं कि इसके ऊपर असेंट भी कोई नहीं दी, तो फिर ये लॉ बन कैसे गया, इसकी इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ फिर वही वाले फैसले की बात होगी जो कि जनाब दिलावर हुमायूं साहब ने फैसला दिया, अभी उनका फैसला हुआ नहीं है, जहां से गिरफ्तारियां भी हो गई। ये फिर वो हवा वाली बात है कि इसका मतलब आप ये समझते हो सदर साहब माफी मांग रहे थे, वो अपने पावरलेस होने की माफी मांग रहे थे? नहीं, मैं उसके ऊपर भी अर्ज करता चलो। देखिए, इसकी वजाहत तो प्रेसिडेंट साहब भी देंगे, उसके ऊपर एक इंक्वायरी हेल्ड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि क्या प्रेसिडेंट साहब की इस बात को कोई सेंसिटिविटी हासिल है कि नहीं है, बिल्कुल यकीनी बात है कि हासिल है। उन्होंने जो बात की है वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर जाके बात की है, और मैं ये समझता हूं कि उनको एडमिसिबिलिटी हासिल है और इसको देखना चाहिए एक डिफरेंट एंगल के साथ। अगर प्रेसिडेंट साहब ने बात की है तो उसकी जनाब कानूनी वैल्यू भी है और इसको कंसिडर भी करना चाहिए। लेकिन ये बात कह देना कि जनाब वो उनके पास इख्तियार नहीं है, वो हेल्पलेस हैं, उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, उसने ये मुनाफिक स्टेटमेंट दे दी। देखें, इसके ऊपर प्रॉपर एक इंक्वायरी हेल्ड होनी चाहिए। ये मजाक जो है ये पहले दिन से हो रहा है, आज से मजाक नहीं हो रहा। अदालतों के पास हम लोग रिलीफ लेने के लिए क्या दें? आपके सामने जो फैसला किया था कि इलेक्शन होगा KPK के अंदर हो रहे थे, उसके ऊपर क्या अमल दरामदगी हो सकी है? कोई अमल दरामदगी नहीं हो सकी। अभी इन्होंने ये कहा, अब मैं अर्ज करता चलो सेंसिस के हवाले से बात कर ली जाए तो इनको सेंसिस करवाने की जरूरत क्या है? जब ये सेंसिस हो जाएगी तो उसके बाद जो है दोबारा से तकसीम होगी, उसके लिए सीटें बढ़ाना भी पड़ेंगी, कम भी करना पड़ेंगी। क्या ये पार्लियामेंट इन फील्ड नहीं है तो क्या ये सारे काम हो सकते हैं? नहीं काम हो सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर समझना चाहिए, इन अदारों को भी देखना चाहिए। पार्लियामेंट तो अब नहीं रही फील्ड में, और अदालतों को भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको संजीदगी के साथ लेना चाहिए। लोग बाहर बैठ के हमारा मजाक कर रहे हैं
मुल्क की मईशत बहरान का शिकार है, सारे के सारे अदारे एक दूसरे के साथ तसादम के अंदर हैं, अदालतें एक दूसरे के साथ तसादम में हैं। अच्छा, एक और मैं अर्ज करता चलूं बिलाल साहब, अब मसला ये है कि ये कंट्रोवर्सी पैदा क्यों हो जाती है। एक जज साहब जो है अपनी विजडम के मुताबिक फैसला दे देते हैं, दूसरे जज साहब अपनी विजडम के मुताबिक फैसला दे देते हैं। अब निचली अदालतों के पास क्या है, अगर किसी को रिलीफ देना हो तो एक साइड से उठा लेते हैं पलंदे में से, अगर किसी को रिलीफ नहीं देना तो दूसरी तरह से पलंदे में से उठा लेते हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? क्या कानून को सिर्फ और सिर्फ उन लीगल पॉइंट्स के ऊपर और लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो डिस्क्राइब करने की या ओपिनियन देने की जरूरत है जो कि कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर कानून क्लियर नहीं है? यहां पर समझ नहीं आती कि जो लेजिस्लेशन की जाती है वो भी, और उसके बाद जो फिर इंप्लीमेंटेशन है, उन दोनों को देखा जाए तो दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है, अशराफिया को, कुछ लोगों को फायदा देना और फिर कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई, अब मुझे नहीं पता क्या इसके ऊपर, ये तो जब बाहर बात आएगी सामने, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये जा रहे हैं, जब जाएंगे तो फिर उसके बाद मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड को तलब कर ले, उसके बाद ये क्लियर होगा कि क्या वो जो रिटर्न किया था उस बिल को, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मैंने कहा था कि रिटर्न कर दें, उन्होंने रिटर्न किया कि नहीं किया। ये तब गुत्थी सुलझेगी, ये तब बात सामने आएगी जब वो सारा का सारे रिकॉर्ड तलब होगा। फिर उसके बाद देखें, एक मैं बिलाल साहब और अर्ज करता चलूं, क्या प्रेसिडेंट साहब जो हैं, एक अहम पॉइंट ये है, क्या हर बिल के ऊपर खुद ही वो सिग्नेचर करते हैं कि क्या उन्होंने आगे नीचे अथॉरिटी ये डिवाइड की हुई है, ये उन्होंने दी है किसी को कि आप भी मेरे बिहाफ के ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं? अगर तो ये प्रेसिडेंट साहब का सोल प्रीरोगेटिव है कि वो हर पास होने वाले बिल को जो उनके पास आएगा उसके ऊपर खुद दस्तखत करेंगे तो फिर सिनेरियो और है। अगर ये है कि उन्होंने ये पावर डेलीगेट कर दी है नीचे सबऑर्डिनेट्स को कि वो उनके बिहाफ के ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं तो फिर और है। अब ये सारी चीजें सामने आना जरूरी है, बर वक्त ये जब आएंगी तो फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई हतमी राय कायम की जा सकती है, हतमी राय जा सकती है। लेकिन अभी का आपका जो पॉइंट है वो सामने आ गया और आप ही समझते हैं कि सदर साहब की मर्जी के बगैर ही सारा कुछ हुआ है, कानून पास होना, और जिस तरह से रिटर्न आपने बताया कि रिजेक्ट तो वो कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं, और जिसमें रिटर्न में ये सदर साहब कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि सदर साहब के साइन का भी कोई इशू है उसके अंदर बिल के ऊपर? बिल्कुल है। जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने साइन ही नहीं किया और उसके बाद वो गजट के अंदर जो है वो पब्लिश भी हो गया, तो फिर वो साइन हुए हैं तो उसके बाद ही हुआ ना। एक तो बात ये थी कि अगर ये पॉइंट क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से आज चले गए हैं, आप क्या समझते हैं कि इस पर क्या होगा? सिर्फ एक पॉइंट डिसाइड करने के लिए जरूरी है, वो ये कि क्या अगर प्रेसिडेंट साहब के पास एक बिल चला जाए दस्तखत होने के लिए और उसके ऊपर वो दस्तखत नहीं करते, उसकी क्या कानूनी वैल्यू होगी? दूसरा जो इसका पहलू है ना, वो तो क्लियर है कि उन्होंने रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्शन देने के बाद, नीचे से दोबारा पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन में से होके आ गया, वो अगर उसको साइन नहीं करेंगे तो वो डीम्ड टू भी हो जाएगा। वो तो बात क्लियर है। सिर्फ इतना पॉइंट डिटरमिन करने वाला है कि जब उनके पास पहली बार बिल आया उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए और वो रिटर्न भी नहीं हुआ, तो फिर उसकी क्या वैल्यू है, क्या वो एक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पॉइंट अभी डिसाइड होना बाकी है, इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं की जा सकती, और मैंने जो आज तक पढ़ा है वो यही है। ठीक हो गया। फिर जरा याद दोनों साहब, सर यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस माशाल्लाह, आप क्या समझते हैं कि सदर साहब जिस तरह से रिटर्न उन्होंने बिल किया और वो कहते हैं मेरे साइन नहीं है और साइन मौजूद भी हैं उस बिल के ऊपर, क्या कितना कंट्रोवर्शियल हो गया ये, और आप क्या समझते हैं कि सदर साहब की इजाज़त के बगैर साइन हो गए हैं? अब कह तो रहे हैं सदर साहब और साइन भी हुए हैं उसके ऊपर, तो क्या अगर वो 10 दिन में रिजेक्ट नहीं होता तो क्या ये बिल खुद से ही ऑटोमेटिकली यानी अप्रूव हो जाएगा, बिल होगा क्या वहाँ पे? अब इसमें जो 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़े ध्यान से देखने वाली हैं कि अगर तो अज़रूए कॉन्स्टिट्यूशन उन पर कोई बाइंडिंग है कि वो विद इन 10 डेज या 15 डेज ठीक उस पर आइदर वे डिसाइड करें, ये बात तो तय होगी कि रिजेक्ट करने का इख्तियार उनके पास है नहीं, ठीक, या वो उसको कंसेंट देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा सीधा सीधा, ठीक, जब कंसेंट देंगे तो साइन करके भेजेंगे वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, और अगर उस पर कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं, ठीक, और रिटर्न करते हैं तो वो फिर पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, ठीक। इन दोनों में से तो कोई चीज़ सदर साहब कहने को तैयार नहीं है, ना उन्होंने कहा है, ये वो कहते हैं कि जी मैंने अप्रूव नहीं किया, ये बात हो रही है ना कि मैंने अप्रूव नहीं किया तो फिर ये कैसे बन गया। लेकिन ये अब ये सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन करेगी
कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूल सदर से साहब दो बातें कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं मैंने अप्रूव भी नहीं किया और मैंने रिटर्न भी कर दिया, जिसको मैंने 3 बार रीचेक किया, रिकन्फर्म किया, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसको हमने वापस रिटर्न कर दिया है। मादरत के साथ वो इतने बड़े जो उनका है मकाम उस पर हैं, ठीक, लेकिन उनकी इस बात में ज्यादा वजन नहीं लगता कि सदर साहब कहें, या तो इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बिल उन्होंने कहा हो कि जी इसको रिटर्न कर दें विद दिस ऑब्जर्वेशन, और वो ना हुआ हो, तो फिर तो ये समझते हैं कि जी नीचे वाली जो थी उनकी टीम, उनमें कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब जो हैं वो उनको बाद में एहसास हुआ है कि मुझे इस पर ऑब्जर्वेशन दे के भेजना चाहिए था वापस, ठीक, तब इसमें वापस जाना था, मैंने छोड़ दिया है। और 10 दिन के बाद जब वो नोटिफाई हो गया तो 27-28 घंटे, इससे भी ज्यादा टाइम गुजर गया हुआ था, तो सदर साहब को याद आ गया, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने फिर भी ट्वीट किया, और उसमें अगर वो ठीक थे तो उन्हें माजरत नहीं करनी चाहिए थी, और अगर गलत थे तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। ठीक थे तो माजरत नहीं करनी चाहिए थी, गलत थे तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा सर, सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का क्या मकसद है? और जिस तरह से सदर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी रिमूव किया है और मतलब इस्टेब्लिशमेंट वीन पे वापस उसकी खिदमत कर दी हैं, और कह रहे हैं कि नए बंदे की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से एक एक्चुअली तो इल्ज़ाम आ गया एक किस्म का, सदर साहब ने जिस तरह से पहले स्टार्ट किया और अपना ट्वीट किया, तो उसमें यही कहा था कि मैंने साइन नहीं किया और मेरी इजाज़त के बगैर ये बिल को वापस भेज दिया गया मेरे साइन के साथ। तो सर ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, फिर इसका मतलब है उनके साइन कोई भी कर दे। देखें, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। ये देखिए डिटरमेंट तो कोर्ट के पास जाएगा, तो कोर्ट ने करना है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए, कंसेंट नहीं दी उस पर, या उससे डिसएग्री नहीं करिए और डिसएग्री करके वापस नहीं भेजा उसको, तो तीसरा, अब पहली दफा ये चूंकि इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो रही है, तो फिर क्या होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वजाहत अदलिया का काम है, आपका या मेरा काम नहीं है, और ना हमें इतना ज्यादा ईगर होने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी हम ब्रेक में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आपको मिल जाए यहाँ से, हमें वो देख के उस पर कोई कमेंट करने चाहिए कि जी ये इस तरह से है। वरना अदालत के पास जाएगा तो फिर सारा रिकॉर्ड भी अदालत मंगवाएगी कि जी किस किस तरह से हुआ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फैसला क्या आता है? हाँ, अगर वो कानून बन गया है तो अब उस पर अमल दरामद क्यों ना किया जाए, जब तक के कोर्ट उस पर अमल दरामद रोक नहीं देती। ठीक, कोर्ट के पास आज गए हैं, कल कोर्ट उस पर अमल दरामद रोक देती है, वेरी गुड, उसको रोक देना चाहिए। और अगर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर लेती है और उस पर अमल दरामद को नहीं रोकती, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक्ट मौजूद है, जब तक वो कल अदम नहीं हो। हाफिज इसरारुल हक साहब, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट सर? भाई सिर्फ एक बात मैं अर्ज करना चलूं, देखें, एक है कंसेंट लफ्ज और एक है असेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड यूज किया 75 के अंदर, वो है असेंट का, वो कंसेंट का नहीं है। ठीक है, अब असेंट कैसे होगी? क्या ये इम्प्लाइड होगी या फिर कैसे होगी? इसका कोई तरीकेकार तो वजह नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा, मैंने बड़ी कमेंट्री पढ़ी, मैंने उसके ऊपर लॉ भी रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे इसके ऊपर पॉइंट नहीं मिला। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, वहां से इसके ऊपर कोई आ जाएगी। जैसे मैंने पहले बात की है, ये अनप्रेसिडेंटल है। अगर कोई पहले से प्रेसिडेंट मौजूद हो, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आई हो, कोई ऐसा लीगल पॉइंट डिस्कस हुआ हो, ऐसा तो मेरे हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये पहला होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है पूरे पाकिस्तान का, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसे एक्सपीरियंस के लिए सदर साहब तैयार नहीं थे, सदर साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, और उन्हें अंदाजा ही नहीं था यानी ये बन जाएगा इस तरह से। सर, जिस तरह से हमें नजर आता है कि सदर की पास तमाम ताकतें तो होती नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, वो तो ऐसे बैठे थे। इससे पहले ममनून हुसैन साहब भी थे, तो वो सिर्फ चाय पानी के लिए बैठे रहे थे और कुछ खास करते नहीं थे। उससे पहले भी तमाम सदूर रहे हैं, सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब के, उनके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे और सदर होते हुए सारा कुछ कंट्रोल करते थे अपने बलबूते पे। अदरवाइज तो शायद सदर के पास इतनी ताकत नहीं होती। हो सकता है पहले भी कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन कोई सदर बोला ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, कि आपने किसी चीज में, अब मेरा ख्याल ये है कि सदर साहब जो है ना, वो गैर जानबदार नहीं रहे, अब वो झुकाव का शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें अपनी गैर जानबदारी, और इतना थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब तो सिर्फ 15 दिन के सदर हैं वो, 20 दिन के। कोई सदर बताएं जो गैर जानबदार थे। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन सदर बनने के बाद जो है ना, सदर बनने के बाद गैर जानबदारी शो करनी पड़ती है, आपको बनना पड़ता है। सर, कौन सा सदर था जो बना गैर जानबदार? ममनून हुसैन साहब, बहुत सारे लोग जो हैं, उन्होंने काफी बेहतर अंदाज में जो है, मसलन रफीक तारड़ साहब जो है वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी चलते रहे आपके सामने। जी बिल्कुल।
तो मजबूरी थी ना, आर्मी मिलिट्री को हो गया था, तो अब भी वही है। साहब क्या करते हैं? अब भी वही है, अब भी वही कुछ है। अब भी वही कुछ है। अब मैं आऊँगा आज जो केस है ईमान मजारी और अली वजीर साहब का, ज़ाहिर है कि उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया और एक स्पीच की थी उन्होंने, और स्पीच के अंदर बहुत सी बातें उन्होंने कर दी थी और शायद रेड लाइन क्रॉस की और बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन स्टिल दे आर ऑन दैट। और हमने देखा कि ईमान मजारी साहिबा वकील भी हैं और इसी पेशे से उनका ताल्लुक है। उन्हें नाइट सूट के अंदर ही अदालत में पेश भी किया गया। शायद उन्हें मतलब कोई ख़ास कपड़े पहनने नहीं दिए गए या वो पहनना चाहती नहीं थी, लेकिन बहरहाल इस बात पे एतराज़ वकला ने भी किया है। एक वकील होते हुए चाहिए था कि अगर उन्हें पेश किया जाता अदालत में थोड़ा सा इज्जत से पेश किया जाता उन्हें, कुछ थोड़ा सा। और इसी तरह अली वजीर साहब का भी मामला है। हाफ साहब, आप भी इसी पेशे से हैं सर, और जिस तरह से आपने देखा ईमान मजारी साहिबा को पेश किया गया है, लेकिन फिर भी शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, विक्ट्री का निशान बना रही थी और अब वही नारे दोबारा से बुलंद कर रही थी अदालत के अंदर। आप क्या समझते हैं सर कि वो अभी तक अपने पॉइंट पे खड़ी हैं और वो खड़ी रहेंगी ये 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद भी? बिलाल साहब, बात ये है, तारीख ये बताती है कि बहुत से कम लोग हैं जब अदारों के साथ टसल में आ जाते हैं, इन कंफ्लिक्ट विद इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए मुश्किल होता है स्टैंड करना। बिल्कुल सर। सवाए एक शख्स के जो कि 804 नंबर बैरक आपको बेहतर पता होगा, 804 वाले कैदी नंबर 804 जी बिल्कुल। तो कैदी नंबर 804 वाले जो हैं वो अभी अपनी बात के ऊपर स्टैंड किए हुए। ठीक, देखें, बात ये है कि हम में से किसी को ये इजाजत नहीं है कि हम अदारों के साथ तसादुम में आए, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इजाजत नहीं देता, और इस मुल्क के बशिंदे होने के नाते भी हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम अदारों के साथ तसादुम में आए। बिल्कुल ठीक। अब मसला ये है कि वो अदारे जो कि इस पब्लिक को मजबूर कर दें कि आप लोग आए हमारे साथ इन कन्फ्लिक्शन में, हमारे सामने आए और फिर हम लोग आपका सामना करते हैं, तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं। देखिए, बात ये है कि जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट दे दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो फिर हमें या तो इन राइट्स को निकाल देना चाहिए, तो या फिर ये है कि जब हमने आज़ादी इजहार राय का हक दे दिया तो फिर इसको छोड़ दिया जाए कि वो कानूनी हदूद के अंदर एक खास पैरामीटर जो उन्होंने दिए हैं। आर्टिकल 4 की भी हम बात करें तो आर्टिकल 4 भी यही कहता है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर हम बात करें एसोसिएशन के हवाले से, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, अगर हम लिबर्टी को कर्टेल करने के हवाले से भी बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि एक पैरामीटर के अंदर आप लोग जा सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। देखिए, जहां तक रही बात ये कि क्या आज की सिनेरियो के बाद इनका रवैया क्या है और क्या नहीं है, वो उसकी एक जाती उनका है मैटर, उसके ऊपर हमें ना कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतनी बात जरूरी है जिसके ऊपर आज मैंने सुना, इसके ऊपर एतराज भी कर रहे थे कि चूंकि वो उसका तल्लुक जो है एक वकला कम्युनिटी के साथ है, तो उसको चाहिए था कि उस हवाले से दिया जाए। देखिए, अगर हम ज़ाब्ता फौजदारी की बात करें तो ज़ाब्ता फौजदारी के दफा 42 जो है, 42 गालबन मुझे 42 है या 44 है, इसको डील करती है कि जब आप अरेस्ट की बात करेंगे तो फिर अरेस्ट किस तरह से होगी। इस तरह से हम बात करें पुलिस रूल की 26 पॉइंट समथिंग जो है, वो सारे इसको डील करते हैं। जब किसी को अरेस्ट करना हो तो उसके इज्जत को, उसकी तकरीम को, उसके वकार को जो ना वो मजरू नहीं करना चाहिए उसको। अच्छा, एक बार ये मैं अर्ज करता हूं, लेकिन यहाँ तो पुलिस ने अभी रिसेंटली जो एक्शंस किए हैं, घरों में जाके हर चीज तोड़ दी है, सारा कुछ वहाँ पे बुरे हाल कर दिए लोगों के। कल भी मैं देख रहा था, उस्मान डार साहब है, उनकी वालिदा सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो चल रही थी कि किसी चादर चार दीवारी की इज्जत नहीं रखी गई। यहाँ पे रिसेंट तमाम वाकयात में पुलिस ने जो किया है, आप क्या बातें कर रहे हैं सर? ये तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी आपको। बिलाल साहब, देखें, पुलिस कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हुई, मैं ये समझता हूँ तारीख के अंदर, जब तक इनको जितनी के अब है, और ये तब ही ताकतवर हुई है जब इनको पुष्ट पनाही हो किसी खास कांस्टेबल ने बड़ा अब्यूज किया, आईजी साहब को बड़ी गालियां निकाली, आईजी साहब ने आज जाकर उन्हें जफ्फी डाली, गले से लगाया। क्या आईजी साहब को जो उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको भेज दिया जाए वहां पर। तो उसके बाद देखिए, बात ये है कि पुलिस का काम ये नहीं है, इन अदारों का काम ये तो नहीं है, ये मजबूर किया है। देखिए, एक एक्शन का रिएक्शन होता है, एक एक्शन को ना जो कोई भी शख्स है एक लिमिट तक जो है वो सबोताज कर सकता है, या एक लिमिट तक जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। जब लिमिट बढ़ेगी, मैं कहता हूं कि जब गैरतमंद की गैरत जाग जाती है तो ऊपर अकड़ जाता है। ये वही वाली बात होगी है कि ये जो नौजवान हैं, इनके ख्वाब थे जो शशदरा हो गए हैं, जो बिखर गए हैं, जो मसक शुदा हो गए हैं, अब इनके पास इस रद्द अमल के अलावा और बचता क्या है। लेकिन बहरहाल ये है कि हमारा पहले दिन से भी ये व्यू है, आज भी यही है कि नदारों को इस तरह से नहीं आना चाहिए।
मुल्क की सालमियत के खिलाफ इनको नहीं आना चाहिए, और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, या तो देखें आपके पास सिंपल सी बात है, इनके बोलने के राइट को खत्म करना है, इनके एसोसिएशन के राइट को खत्म करना है, तो पार्लियामेंट मौजूद थी ना, वहां पे एक जिस तरह से बाकी अमेंडमेंट्स लेके आए, ये भी अमेंडमेंट लेके आ जाते, इनको बाहर निकाल देते, आर्टिकल कौन से चेंज करना इनके लिए मुश्किल काम थे, वो कर देते तो ये सारे के सारे लोग महदूद हो जाते। या फिर क्यों नहीं ये कर लिया जाता कि एक ही डिक्टेटरशिप का निजाम आ जाए, या फिर क्यों नहीं ये कर लिया जाता कि एक ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, बाकी सारे के सारे लोग आजाद हो जाएं, जिसका एक बंदे का जो दिल चाहेगा वो वाली नाल होगा, सारे के सारे इख्तियारात भी उसके पास होंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब को क्या रखा हुआ, मुझे तो समझ नहीं आई। मैंने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा और मैंने पिछली हिस्ट्री भी पढ़ी है, उस हिस्ट्री से मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ। ये तो इस्तेहसाल है उस प्रेसिडेंट को वहां पर बिठाने का, जब काम पार्लियामेंट करती है, उसके बाद सेनेट की बात करें वो काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बात कहता है वो काम हो जाता है, प्रेसिडेंट को सिर्फ साइन करने के लिए रखा हूँ। ये प्रेसिडेंट जो है इनको ना रखा जाए, मुफ्त की इनको तनख्वाहें दे रही है, प्राइम मिनिस्टर का जो दिल चाहता है वो प्रेसिडेंट हाउस है, इतने सारे लोग हैं और सारा कुछ ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, इससे बेहतर है कि उनको फारिग कर दिया जाए। गंदुल साहब, यहाँ तो बात हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब को रखे ही ना। और अगर थोड़ी सी बात की जाए, जो पुलिस अफसरान कहते हैं कि अगर पुलिस के अंदर आपने अफसरान की बात करनी हो तो दो ही ओहदे मशहूर हैं, एक सिपाही जी का और आईजी का। तो हमने देखा कि आईजी साहब को एक सिपाही जी ने बड़ा बुरा भला कहा और बड़े उनके बारे में तल्ख अल्फाज और गालम गलोच किया। उसके बाद आईजी साहब ने जाके सिपाही जी को गले लगाया और बड़ा दिलासा दिया, बड़ी शाबाशें दी उनको। और क्या आप और मैं भी अगर ये करेंगे तो सर हमें शाबाश मिलेगी? देखें, जो वाक़े के आप कोट कर रहे हैं जी, एग्जैक्ट मैं उसको वाक़े को देखा तो नहीं मैंने, ठीक है, लेकिन आईजी साहब जो हैं वो उसको जाके मिल रहे हैं, वो सारा सीन मैंने देखा है। ठीक है। इसके दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए। ये एक तो हमारे माशरे के लिए गुड गेस्टर के तौर पर भी हो सकता है कि अगर आपके कोई जूनियर या आपसे छोटे तबके का बंदा जो है वो कोई ऐसी बात करता है तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, ठीक, और उसको इखलाकी तौर पर जो है वो करें। तो लेकिन क्या हम इसको आगे अपना सकेंगे, ठीक, लेके आगे चल सकेंगे? ऐसा मुश्किल है। और बाकी जो आपने एक कमेंट किया है कि जी पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस में दो ही कहते हैं, एक सिपाही जी और एक आईजी, एक दरम्यान में एसएचओ भी जी होता है। बिल्कुल, उसके नहीं एसएचओ बहुत बड़ा जी होता है सर, हाँ, वो मतलब बहुत बड़ा आईजी होता है, लिहाजा उसमें जो है ना जी बड़ी एहतियात की जरूरत है। असल में पुलिस का रवैया जो है ना सर, वो तो मेरे दोस्त सब जानते कर रहे थे, ये वाकई बड़ा खराब सब जानते हैं कि पुलिस का यही रवैया, जिस तरह से वो वीडियो अगर ये हमेशा से है, ये आपको नया नहीं हुआ। वीडियो अगर आप देखें तो बाकायदा, क्योंकि उसको एक यूट्यूबर था वहां पे गालिबन, उसने रोका और रोक के उससे कुछ सवाल करना चाहा तो उसने बड़ी गलीज गालियां निकाली और निकालता रहा। हर सवाल के जवाब में उसने एक गंदी गाली निकाली वहां पे। जब आईजी की बात आई, सीसीपीओ की बात आई, किसी भी की बात आई, उसने हर डिपार्टमेंट को, हर चीज को उसने गलीज गालियां निकाली और वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बल्कि कुछ हमारे दोस्त गए भी थे, जाके उन्होंने उसको क्रॉस चेक भी किया तो उन्होंने कहा ये जो शाहिद है बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, कोई इसमें पागलों वाली ऐसी बात नहीं लगी है। इसके बावजूद ऐसे लग रहा है जिस तरह पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, और हमेशा ऐसा ही लगता है कि पुलिस जब प्रोटेक्शन देती है अपने नीचे वालों को तो फिर वो मजीद शय मिलती है, मजीद गलत काम करते हैं और फिर आवाम का यही हाल होगा जो आज हो रहा है। सर दरअसल इसमें यह है कि मैं सच्ची बात है इस वाक़े को इतना डीपली मैंने देखा नहीं है, ठीक, तो इस पर कोई गलत राय कायम करना या देना जो है ना वो मुनासिब नहीं होगा। इसरार साहब, अब मैं चाहूंगा आपकी राय इस पे। बिलाल साहब देखें, इखलाकी कदरें हमारा मुआशरा इस कदर खो बैठा है कि हम लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। और वो जो इंसिडेंट हुआ था वो वाकई मैंने वीडियो देखी है और उसने मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसी हद नहीं थी जिसको उसने क्रॉस नहीं किया, बल्कि इवन कि उसने आईजी साहब को भी गालियां दी, मुक्के मारे, उन लोगों को भी बिला मारे हैं। और फिर वो बाइक के ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो आगे जाता जा रहा है, उन्होंने पीछे उसके भाग के वो सारा का सारा। देखिए अब इसके ऊपर क्या राय कायम की जा सकती है बिलाल साहब? कोई अच्छी बात हो तो उसके ऊपर हम लोग एक मुआशरे को एक पॉजिटिव मैसेज दें। बुरी बातों को डिस्कस करने के बाद यकीन करके हम तो खुद परेशान हो गए हैं कि अब हम इसके ऊपर क्या बात करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें मजीद को बात करने की जरूरत है। बहरहाल सोचना ये चाहिए कि मजमूई तौर पर मुआशरे को तरबियत की जरूरत है, और वो तरबियत का फुकदान होना हमारे मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। ये कौन इसका ख्याल करेगा? हम करेंगे, हमारे बड़े करेंगे। देखें, हमारी तरबियत अच्छी होगी, हम नस्लों की तरबियत अच्छी कर सकेंगे। जब हमारी तरबियत नहीं होगी तो हम फिर नस्लों की तरबियत भी अच्छी नहीं कर सकेंगे। बस इतनी सी बात करते हैं। तरबियत होना बहुत जरूरी है। हमारी तरबियत होगी तो हम अगली नस्ल की तरबियत करेंगे, अगर हमारी नहीं होगी तो अगलों की क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया खिजर याद गोंदल साहब आपका, थैंक यू सो मच। हाफिज इसरार साहब आपका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।